Hello students, today we'll discuss NTA Abhyas NEET Test 97 Physics part. In this test I found 25 questions easy, 18 medium and 2 difficult. If one scores 140 plus then that would be a decent score. हम question number 1 से start करते हैं. Assuming f to be the frequency of first line in Balmer series, frequency of immediate next line is. So for Balmer series transition is from n to 2. In general f को हम लिख सकते हैं it is RC 1 upon 2 raised to the power 2 minus n raised to the power 2. ये ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन की, माना 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा तो f is RC 1 upon 2 square is 4 minus 1 upon 3 square is 9. 9 minus 4 is 5 and 9 into 4 is 36. So this would be 5r by 36. सेकेंड बोला है इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, तो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन के लिए जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो n इक्वल्स 4 से n इक्वल्स 2 में होगा, 4 से 2 में होगा. तो f डैश हम लिख सकते हैं RC 1 upon 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 1 upon 4 का स्क्वायर इज 16. 16 minus 4 is 12, 16 into 4 is 64, तो 16 into 4 ही लिखते हैं. So this would be 3r by 16. यदि हम f डैश अपॉन f कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 by 16 अपॉन 5 by 36. That means 3 into 36 divided by 5 into 16. 4 9 times is 36 and 4 times is 69. 27 by 20 that is 1.35. तो f डैश हो जाएगा 1.35 F. Next question. Ionization energy of helium plus ion at minimum position status. तो minimum position state that is at ground state, n equals 1 और helium के लिए z का value is 2. हमें पता है in general E is minus z square 13.6 upon n square. So n is 1 and z is 2, so this would be 2 square 4 into 13.6, so it is minus 54.4 eV. आयनाइजेशन एनर्जी इसी का ही नेगेटिव होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. Two billiard balls undergo head-on collision. Ball 1 is twice as heavy as ball 2. So say mass of ball 2 is m. So mass of ball 1 would be 2m. And 2 is m. Ball 1 is moving with speed v. Initially 1 move कर रहा था v speed से and 2 was at rest. तो 2 rest पे था. Finally क्या हो रहा है? After the collision 1 travels at a speed of v by 3. तो 1 जो है वो v by 3 से जा रहा है. This is 1 and 2 का speed given नहीं है, हम इसको v2 लेट कर लेते हैं. यहाँ पे momentum conserve होगा तो we can write mv plus 0 equals 2mv. Mass of 1 is 2m equals 2m v by 3 plus m v2. Okay, इसको rearrange करेंगे तो 2 minus 2 by 3 तो it is 4 by 3 mv is mv2. That means v2 is 4v by 3. अब हमसे v2 तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है type of collision. So we have this equation of restitution which says E times velocity of approach is equal to, so I should write you 1 second. It says E times velocity of approach is velocity of separation और E जो है वो हमको बताएगा कि collision का type क्या है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं E into u1 minus u2. This is velocity of approach and this is velocity of separation. तो यहाँ पे हम वेक्टर लगा देते हैं. u1 is v and u2 is 0. v2 is 4v by 3. उसी सेम डायरेक्शन में तो प्लस होगा माइनस v1 which is v by 3. तो ये v ही आ रहा है. That means E का वैल्यू जो है वो 1 है, तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two blocks A and B are connected by a massless string shown in figure. Force 30 Newton is applied on block B. Distance traveled by center of mass. So ACM is F external divided by
mass of system. So if external 30 Newton and mass of system 10 plus 20 30 kg, that means CM का acceleration is 1 meter per second square. हमसे पूछा है distance traveled in 2 seconds, तो हम equation of motion apply करेंगे. Delta x is equal to ut, which is 0 plus half at square. So a is 1 and t is 2 square. So displacement would be 2 meters. B option correct हो जाएगा. Question number 5. Particles are released from rest at A and slide down smooth surface of height h on a conveyor belt B. The correct angular velocity omega of the conveyor pulley of radius r to prevent any sliding on the belt as particles transfer to the conveyor belt. तो पूछा है A जैसे ही पार्टिकल A जो है जैसे ही बेल्ट B पर आएगा तो यहाँ स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए. स्लिपिंग के लिए ये कंडीशन होगी कि जैसा A का वेलोसिटी है वैसा ही पॉइंट बी जो है कन्वेयर बेल्ट पे उसका वेलोसिटी हो. तो वेलोसिटी जब ए और बी पॉइंट्स का सेम होगा तो देयर वुड बी नो स्लिपिंग. तो हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल एच हाइट से रिलीज किया है तो जब बॉटम पे वो पहुंचेगा तो उसका स्पीड जो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ये हो जाएगा. ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं हम. तो v का वैल्यू u इज 0, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 2gh. और जो पॉइंट b है उसका अगर हम स्पीड देखें तो क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है तो वो ओमेगा आर होगा. ये दोनों पॉइंट्स का स्पीड सेम होना चाहिए. दैट मीन्स ओमेगा आर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 2gh. तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh बाय आर. दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A circular loop with n turns radius r lies in xy plane carrying current I in anti-clockwise sense. तो ये anti-clockwise sense है और ये xy plane में lie कर रहा है. This is x, this is y. If the magnetic field in the region is B naught I cap, then find torque. तो torque is Ni A cross B. A एरिया वेक्टर हम ऐसे निकालेंगे. अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे. जहाँ थंब पॉइंट करेगा वो ए वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर भी अगर हम ऐसा करें तो z डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट कर रहा है. दैट मीन्स एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर के कैप. और मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई कैप. तो देखते हैं क्या आता है. एन आई पाई आर स्क्वायर के कैप क्रॉस विथ बी नॉट आई कैप. के क्रॉस आई, तो हमें हमेशा ये याद रखना है आई जे के. के क्रॉस आई इज जे. सेम क्लॉकवाइज ही हम मूव कर रहे हैं. तो दिस इज एन आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट जे कैप. दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट. Ratio of concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7 by 5 and the ratio of current is 7 by 4. Drift velocity का ratio बताना है. तो I is NEA VD. यहाँ पे हमें VD बताना है और N और I का ratio given है. तो हम अगर इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें तो VD would be I upon NEA. और कांस्टेंट E and A VD is proportional to I by N. I का रेशियो हमें गिवन है 7 by 4. ओके. और सेमीकंडक्टर हमारा कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमको 7 by 5. तो जो ये रेशियो हो जाएगा VDs का, VD ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स, ये हो जाएगा 5 by 4. दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे हमें गिवन है, ये डायग्राम में I1 I2 I शो कर रखे हैं और I का वैल्यू बताना है. तो हम C पॉइंट का पोटेंशियल X लेट कर लेते हैं और जंक्शन लॉ से वी कैन राइट I1 प्लस I2 इक्वल्स I. I1 is current and current flows from high potential to low potential. That means 20 volt is at high potential, X is at low potential. So we can write 20 minus X divided by resistance, which is 2 delta V by R. I2 is high to low. 10 is at higher potential, so 10 minus X by 4 equals
I is flowing from C to zero potential value, that means इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस 0/2। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2.5 और x/2 1 1 + 1/4 5x/4, तो 12.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। हमें x नहीं फाइंड करना, हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट हो जाएगा 10 - 0 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 एम्पियर। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, two capacitors of capacity 6 microfarad and 12 microfarad in series are connected by potential of 150 volt. The potential of capacitor of capacity 12 microfarad is, so we have two capacitors and they are connected in series across 150 volt power supply. So this is 150 volt. ये C1 है say 6 microfarad and C2 is 12 microfarad. तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, वो V1 ऐसा Q = CV, तो जो V है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। तो आप V1 को लिख सकते हो C2, हमें फाइंड करना है V2, ओके, तो V2 इज C1 अपॉन C1 + C2 इंटू V। C1 is 6 by 12 plus 6 18 into 150, तो ये हो जाएगा 6350, तो 50 volt आंसर। Two identical metal plates are given positive charges Q1 and Q2, तो this question is really good। हमें दो कैपेसिटर प्लेट्स गिवन हैं जिनको कि हमने चार्ज दिया, इसको दिया Q1 और इसको दिया Q2, और बताना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही डिफाइंड है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो हमें बताना है चार्ज स्टोर्ड कितना होगा, तो हम पहले इन चार्जेस को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऐसे होता है, जो आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं उन पे टोटल डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, दैट मीन्स Q1 + Q2/2। यहाँ पर भी Q1 + Q2/2। अब क्योंकि ये वाला प्लेट आइसोलेटेड है, इनिशियली चार्ज Q1 था तो फाइनली भी Q1 होना चाहिए। Q1 + Q2/2 आउटर मोस्ट पे आ गया, तो इस वाली पर आ जाएगा Q1 - Q2/2। ऐसे ही हम इस पे फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ Q1 - Q2/2। तो चार्ज स्टोर जो हो रहा है वो Q1 - Q2/2 हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज स्टोर विच इज Q1 - Q2/2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो ऑप्शन दी जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज मूविंग इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड B विथ वेलोसिटी V। तो एक रॉड है जो कि V वेलोसिटी से मूव कर रही है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड माना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर EMF इंड्यूस होएगा BVL इसके एंड्स के अक्रॉस। पूछा क्या है, द रेजिस्टेंस गिवन है एंड करंट इन द रॉड इज, सो ये रॉड जो है कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो चार्जेस का सेपरेशन तो होगा बट फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज LCR सर्किट विथ AC सोर्स R गिवन है, C गिवन है, L गिवन है, ERMS गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VC RMS हमसे पूछा है, RMS, तो ये हो जाएगा XC इंटू IRMS। तो IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z, और Z की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे, तो ओमेगा इज 2πf, f की वैल्यू है 50/π, तो ये हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। फिर हम फाइंड करते हैं XC, तो XC इज 1/ωc, ओमेगा है 100 एंड C का वैल्यू 20 माइक्रोफैरड, तो 20 एंड 10⁻⁶ यहाँ, तो ये 3500 ओम। फिर फाइंड करेंगे XL, तो XL इज ओमेगा L, ओमेगा इज 100 एंड L इज 1, तो ये हो जाएगा 100 ओम। अभी हमें अगर Z लिखना है तो Z इज √R² +
XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो XC का वैल्यू हमने फाइंड करा, इट इज़ 500। VRMS गिवन है 50 और ये वाला वैल्यू तो ये हम ओरली करते हैं। R इज़ 300 और XC माइनस XL, तो XC माइनस XL 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है और इसका जो वैल्यू आएगा Z का वो 500 आ जाएगा। दैट मीन्स VCRMS इज 50 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, acceleration due to gravity on the surface of the earth is g. The value of acceleration due to gravity at a height of 32 किलोमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट से पहले भी क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी h हाइट पर हम देख रहे हैं स्मॉल चेंजेस के लिए। डेल्टा g बाई जी इज माइनस ऑफ 2h बाई r। तो यहाँ पर h का वैल्यू है 32 एंड r इज 6400। तो डेल्टा g बाई जी हो जाएगा -1/100, 1% का चेंज आएगा। बट हमसे g की वैल्यू पूछी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो डेल्टा g इज -g/100 एंड g डैश इज g प्लस डेल्टा g। तो g माइनस g/100, 100 minus 1, 99/100, 0.99 g. Next question. Change in potential energy when a body of mass m is raised to height nr from the surface of the earth. यहाँ पर ये हमने अर्थ बनाया, इनिशियली बॉडी यहाँ था A पॉइंट पे, फाइनली वो यहाँ पर है B पॉइंट पे और ये nr गिवन है, हाइट जो है वो nr गिवन है। आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना है। तो डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल हो जाएगा माइनस g अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो दिस वुड बी n+1 इंटू r। U इनिशियल यहीं पर था सरफेस पर, तो माइनस g/r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो g/r। तो यहाँ पे हम g/r कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा -1/n+1, सॉरी -1/n+1 प्लस 1। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा g/r n/n+1 और g/r इसको r और r से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्वांटिटी जो है वो हमारी स्मॉल g हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं mgr n/n+1, माना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लास फ्लास्क of volume 1 liter at 0 degree Celsius filled level full of mercury at this temperature. A flask and mercury are now heated to 100 degree Celsius. How much mercury will spill out if coefficient of mercury का volume expansion given है and we have given linear expansion. तो this is important, यहाँ पर गलती होती है, हम इसको भी volume expansion रीड करके गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ डेल्टा V जो होगा उसको आप लिख सकते हो apparent expansion से, आप एक्सपेंशन ऑफ मर्करी माइनस एक्सपेंशन ऑफ ग्लास वेसल, तो कलेक्टिवली लिख सकते हैं क्योंकि ब्रिम तक फिल है ये, वी गामा ऑफ मर्करी माइनस गामा ऑफ ग्लास वेसल, तो इट इज 3 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास वेसल इनटू डेल्टा टी। वी का वैल्यू गिवन है 1 लीटर, गामा एच जी इज 1.82 इंटू 10⁻⁻⁴, -3 इंटू 0.1 विच इज 0.3 और मैं 10⁻⁻³ को कलेक्टिवली बाहर लिख रही हूँ, -4 को बाहर लिख रही हूँ, इनटू टेम्परेचर चेंज विच इज़ 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻² लीटर्स, दैट मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट, Carnot engine absorbs 1000 joule of heat energy from reservoir at 127 degree Celsius. So 127 degree Celsius जो है पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इट इज़ 400 Kelvin. Efficiency and rejects heat. So we have given QH का value as 1000 joule and QC का value 600 joule. हमसे बोला है efficiency क्या होगी, तो efficiency is 1 minus QC by QH, 1 minus 600 by 1000. तो it is 40%. 4 by
100 आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पर हमसे एक और चीज़ पूछी है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब देखा जाए तो इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही आंसर में 40 है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी अगर हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ में ले सकते हैं, ईटा इज़ 1 माइनस TC/TH। हमें TH का वैल्यू गिवन है, TC फाइंड कर लेंगे और TC जो आएगा वो केल्विन में आएगा, तो हम डिग्री सेल्सियस में भी उसको कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a glass filled in a closed vessel, तो वेसल क्लोज्ड है, माना N और V कांस्टेंट है। हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर चेंजेस 1 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो या केल्विन में चेंज हो एक ही बात है, तो ये 1 केल्विन भी हम लिख सकते हैं, 1 केल्विन का चेंज भी इसको बोल सकते हैं। इट्स प्रेशर डिक्रीजेस बाय 0.4%, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस वॉज, so PV is nRT, we know this is ideal gas equation. V and N are constant, that means P is directly proportional to T. So we can write delta P by P is delta T by T. प्रेशर में कितना चेंज आया, 0.4% का, 0.4 डिवाइडेड बाय 100, इसे देखो परसेंट में अच्छे से लिखना है। एंड डेल्टा T 1 केल्विन का चेंज और आपको कैपिटल T फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो T का वैल्यू आ जाएगा 250 Kelvin. That means A option जाएगा। Next question. Solenoid of length 2.5 meter and diameter 2 centimeter has 10 turns per centimeter. Current 0.5 है, आपको बताना है magnetic induction। तो यहाँ पर length 2.5 है और diameter 2 centimeter है, माना ये शॉर्ट लॉन्ग सोलेनॉइड की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट NI, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो SI में लिखना है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टर्न्स 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर्स इंटू करंट विच इज 0.5, तो 0.542 2 पाई, ये हो जाएगा -7 -6 -4, तो ऑप्शन ए। Next question. Conducting loop carrying current I is placed in uniform magnetic field pointing into the plane. तो magnetic field is into the plane. Loop will have tendency to. तो जब भी uniform magnetic field में आपने loop को लिखा है तो इस पे जो net force होगा वो ऐसे 0 होगा, पूरा अगर हम निकालेंगे तो 0 होगा, मतलब move तो वो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि फोर्स आ कैसे रहा है, तो हम यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं। तो इस छोटे से पार्ट में जो करंट है वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो हम राइट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। करंट को हम रखेंगे, थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स जाएंगी और पाम जो है वो फोर्स बताएगा। तो अगर ऐसे हम लिखेंगे तो फोर्स जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। फिर यहाँ नीचे वाले किसी पॉइंट पर देखेंगे तो भी आप इसी अप्रोच से जाओगे तो फोर्स ऐसा इस तरफ आएगा। तो पूरा लूप में जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है, माना दिस लूप हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Length of bridge the length of bridge which a train 130 meter long and traveling at v speed can cross in 30 seconds. तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रिज है और ये ट्रेन है, इसको क्रॉस करना है। अभी ये क्रॉस ट्रेन ब्रिज को कब करेगी, जब ऐसा कुछ केस होगा, है ना। सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हम एक पॉइंट की बात करते हैं कि बी पॉइंट जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। एक तो इसने ब्रिज का लेंथ ट्रैवल करा और एक जो ट्रेन का लेंथ है वो ट्रैवल करा। तो टोटल डिस्टेंस जो है traveled by the train and crossing the bridge is L plus length of train and length of train is 130 meters. अब कितने टाइम में क्रॉस करना है, 30 सेकेंड्स में, इतना स्पीड से। तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम इज 30 सेकेंड्स इक्वल्स L plus 130। तो ये हो जाएगा 9 5 टाइम्स इज 45, 9 2 टाइम्स इज 18, दिस इज 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 375
-130 इज L, तो हो जाएगा ये 245 मीटर्स। दैट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Particle is projected with velocity v so that range on a horizontal plane is twice the greatest height attained. तो given है r is equal to 2h। अभी r का वैल्यू होता है 2u square cos theta sin theta by g and h का वैल्यू होता है ui square by g। तो u square sin square theta by g, ये g और g कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2u स्क्वायर भी कैंसिल, एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स tan थीटा हमारा आ रहा है 1/2। तो आप cos थीटा फाइंड कर सकते हो। cos थीटा इज बेस विच इज 2 अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 अंडर रूट 5। सिमिलरली साइन थीटा भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी हमसे रेंज पूछा है, तो रेंज इज 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई g। तो 2u स्क्वायर cos थीटा इज 2/5, sin थीटा इज 1/√5 बाई g। हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई 5g, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, block of metal weighing 2 kg resting on a frictionless plane is struck by a jet releasing water at a rate 1 kg per second at speed this। तो जब भी वाटर या कोई भी मास जो है वो लीव कर रहा है तो सिस्टम पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं F is dm/dt into v relative। तो dm/dt हमें गिवन है 1 kg per second एंड v relative is 5। तो ये जो वाटर जेट है वो 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज 5, मास इज 2, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन होगा? 23. A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter। तो कोई वुडन ब्लॉक है इस पे हमने एक बुलेट को फायर करा जो कि हाफ वेलोसिटी लूज कर देती है। तो हाफ बच रही है कब? जब वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच फर्दर it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant distance to motion। constant distance to motion that means acceleration is constant। तो ये पॉइंट पे इसका जो स्पीड है वो 0 हो गया है। तो फर्दर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सो दिस इज x। तो हम यहाँ पर A, B, C पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो A to B अगर हम देखें, थर्ड इक्वेशन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s is 3/100 centimeters। ओके, दैट मीन्स -3v स्क्वायर बाई 4 इज 6a/100। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये माइनस, दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज माइनस ऑफ 8a/100। ओके, फिर बोला है 0 पर हमें लेकर के आना है ना, तो हम क्या करते हैं A to C अब अप्लाई कर लेते हैं। तो A to C v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी -v स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर इज -8a/100 अपॉन 2a, माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो ये आ जाएगा 4/100, दैट इज 4 सेंटीमीटर। A to C 4 सेंटीमीटर है, फर्दर कितना मूव करेगी? तो 1 सेंटीमीटर मूव करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है और हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है? आर गिवन देन द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इज। तो यहाँ पर जब भी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी रिलीज निकालना होता है तो हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्यू रिलीज्ड इज।
तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी, बी का बाइंडिंग एनर्जी है 8.1 पर न्यूक्लियन, तो इसमें न्यूक्लियन नंबर कितना है 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ए का बाइंडिंग एनर्जी, तो ए का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.2 and A has 110 nucleons minus binding energy of X. तो binding energy per nucleon of X is 7.4 and it has 200 nucleons. तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो 8864 प्लस दिस इज 82 तो ये हो जाएगा 902 and 74 into 2 तो 81420 1480। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर 70 MeV इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, The nuclei have mass numbers in the ratio. We have to find their radii ratio. तो we know R is R naught a raised to the power 1/3। अभी रेडियस का रेशियो ए के रेशियो के 1/3 होगा, तो 27/125 raised to the power 1/3, तो दिस वुड बी 27 3/5, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन, वी हैव टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड इज 2π/ω, तो 2π इज कोफिशिएंट ऑफ टी, तो कोफिशिएंट ऑफ टी इज 100π, तो पाई कैंसिल 0.02, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन, तो ये SHM हमें गिवन है। द टाइम एट विच मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अकर्स, तो हमेशा हमें याद रखना है कि ऐसा भी सिंपल हार्मोनिक अगर है तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो हमारी मीन पोजीशन पर आएगी और स्पीड एक्सट्रीम पर मीन जो स्पीड है वो 0 होगी। यहाँ पर t0 पे पार्टिकल कहाँ पर है, आप अगर t की वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो cos 0 इज 1, तो x हो जाएगा 2, दैट इज एम्पलीट्यूड, तो t0 पे पार्टिकल यहाँ पर है। हमसे बोला है कि इधर कब आएगा, तो दो अप्रोच हैं। मेथड 1, एक तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वो t/4 लगेगा, दिस इज t/4, तो आप डायरेक्ट t/4 की वैल्यू फाइंड कर लो, t इज 2π/ω, ओमेगा इज पाई और ये 4, तो ये 0.5 सेकेंड आ गया। मेथड 2 हो सकता है कि ये जब यहाँ पर आएगा तो x की वैल्यू 0 होगी, माने एम्पलीट्यूड cos पाई t ये 0 होना चाहिए, और ये 0 तब होगा जब पाई t की वैल्यू π/2 हो जाए। cos 90 इज 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.5, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है, पूछा है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ E एंड B, और वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग z डायरेक्शन, दैट मीन्स E कैप क्रॉस B कैप इज K कैप, है ना, C कैप होगा, और C कैप मतलब स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्शन इज K कैप। दूसरा, E.B 0 होना चाहिए, मतलब क्रॉस हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा रहने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, पहले हम E.B सबका चेक करेंगे, तो दिस इज 2 - 2 0 0 हो रहा है, ये 2 3 6 और ये भी 0 हो रहा है, ओके, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 4 3 12 -12, तो ये भी हो रहा है। अब इन तीनों में से तो सबका फिर हमें क्रॉस निकाल करके देखना पड़ेगा, तो पहले हम देखते हैं ए ऑप्शन के लिए चेक करते हैं कि के कैप किसी का क्रॉस आ रहा है क्या, तो आई कैप जे कैप के कैप 1 2 0 2 -1 0, तो ये आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा -1, दिस इज -1 -4, तो -5 के कैप आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा, इसका डायरेक्शन माइनस के कैप में है। बी के लिए हम चेक करते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप ये हो जाएगा -2 -3 0
and 3 minus 2 0. तो k cap का डायरेक्शन 4 minus 9 तो +9 k cap. तो यहाँ पर प्लस k cap के डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ये हमें दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, E क्रॉस B k cap and E dot B is 0. Next question. Light of wavelength 400 nanometer is allowed to fall on a metal surface having work function 2 eV. तो maximum velocity of emitted electrons. तो यहाँ पर ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, हम ऐसा लिख सकते हैं k max is equal to hc by lambda minus 5. hc का वैल्यू 1240 nm eVnm and lambda is 400 nanometer minus 2. तो ये हो जाएगा 3.1 minus 2 which is 3.1 minus 2, तो ये 1.1 आ जाएगा. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका मैक्सिमम स्पीड. तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ m v max स्क्वायर इज 1.1 eV. तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो v के लिए अगर रीअरेंज करेंगे तो ये 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2, और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 होल अंडर रूट. अब यहाँ पर भी हमें रफ कैलकुलेशन करनी है. तो 9.1 को मैं 9 ही ले लेती हूँ, और ये 1.6 को 10 इधर गया 16, तो ऐसा लिख दिया 2.2 इंटू 16, इसका 10 इधर, ये 9 इधर, ये रफ एस्टिमेट से हम कर रहे हैं, इंटू 19 और ये 31, तो फिर ये ऊपर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा इस टू द पावर 1 अंडर रूट. अब ये हो गया 4, 16 का अंडर रूट और ये 3, ये हमने लिख दिया 10, एक 10 इधर आया और ये इधर गया, तो 10 टू द पावर 5 उसका अंडर रूट, 10 टू द पावर 10 उसका अंडर रूट 10 टू द पावर 5, और यहाँ पर बच गया रूट 22. अब 22 का अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट होता है 5, 5 4 20, 20/3 माने 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. तो सी ऑप्शन के लिए हम जाएंगे. तो रफ कैलकुलेशन, ऐसा एस्टिमेट ही हमें लगाना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 30. Horizontal pipeline carries water in a stream flow at point where the cross section area is 10 centimeter square, the velocity is 1 and pressure is 2000 pascal. Pressure of water at another point where cross section is 5 is. तो प्रेशर बताना है. पहले तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं. A1 V1 equals A2 V2. तो V2 हो जाएगा A1 V1 अपॉन A2. A1 हमें गिवन है 10, V1 हमें गिवन है 1 और A2 इज़ 5, तो V2 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड. और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम से. तो बर्नौली थ्योरम में ये जैसे 1-2 पॉइंट्स हैं, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है. तो यहाँ पे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा. तो आप लिख सकते हो P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2. P1 हमें गिवन है 2000 प्लस रो बाय 2, तो ये डेंसिटी इज 1000 बाय 2. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ V1 स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस V2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स P2. हो जाएगा 500, और यहाँ पर ये है माइनस 4 माइनस 3, 2500 इंटू 3 विच इज़ 1500 इज P2. तो 500 पास्कल इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है. इसमें हम कुछ चीज़ों को याद रखा हुआ है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमें पूरा डेरिवेशन से जाना पड़ेगा. तो मैं डेरिवेशन से बता देती हूँ. यहाँ पे कोएक्सियल सिलेंडर है ग्लास का, immersed in a liquid of surface tension S. Radius of inner and outer surface of cylinder are R1 and R2 respectively. Height till which the liquid will rise. तो यहाँ पर जो सिलेंडर है
वो ऐसे है, कोएक्सियल है। इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वाटर है तो ऐसा कुछ राइज कर रहा होगा, मेनिस्कस ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम जैसे सिलेंडर को ओपन कर दें तो एक दो पैरेलल शीट्स जैसा अगर आप अज्यूम करो, एग्जैक्टली वो सेम एरिया की तो नहीं होंगी, बट अगर पैरेलल शीट्स हमने ऐसा रखी हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ मेनिस्कस बन रहा होगा। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है, वही रो जी एच के इक्वल होगा। तो प्रेशर डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा पी हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे सरफेस टेंशन से। तो यहाँ पर एक तो फोर्स लग रहा होगा और इधर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और जो डेल्टा पी इंटू ए है वो नीचे की तरफ होगा, ये दोनों बैलेंस्ड होंगे। तो डेल्टा पी इंटू ए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू एरिया इज इक्वल टू, इधर ये जो फोर्स होगा ये 2 पाई आर वन, एक सर्कमफेरेंस R1 है, दूसरा जो है 2 पाई R2 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 प्लस R1, है ना, R कैपिटल है। और एरिया हम इसमें ऐसा प्रोजेक्शन एरिया लेंगे, तो प्रोजेक्शन एरिया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी, विच इज नथिंग बट R2 माइनस R1। तो ये तो है R2 माइनस R1, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर हम ये रेक्टेंगल को देखें तो ये क्वांटिटी है R2 माइनस R1, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली दोनों का सर्कमफेरेंस अलग अलग है, तो हम एवरेज ले लेंगे, हम इसको 2 पाई R1 प्लस R2 बाई 2 लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एरिया होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा पी इंटू एरिया विच इज़ 2 पाई R1 plus R2 by 2 is equal to 2 pi, area is length into breadth, so it is into R2 minus R1 which is equal to 2 pi R2 plus R1। ओके, तो यहाँ पर R2 plus R1 तो कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा पी का वैल्यू आ रहा है 2 इंटू R2 माइनस R1, राइट। अभी डेल्टा पी को हम लिख देंगे रो जी एच, सो एच का वैल्यू and surface tension, okay, this is pressure into area which is force is s into L। तो हमने लेंथ तो लिखा, s से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर s से भी मल्टीप्लिकेशन होएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो इट इज कैलकुलेशन, तो यहाँ पर ये 2 और ये R2 माइनस R1 डिनोमिनेटर में R2 माइनस R1, तो जब आप फाइंड करोगे h का वैल्यू तो ये हो जाएगा 2s R2 माइनस R1 रो जी। यहाँ पर हम चाहें तो याद भी रख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल मेनिस्कस के लिए जो डेल्टा P होता है वो सिंपली S बाय R हो जाता है, और जो R होगा वो इस मेनिस्कस का रेडियस विच इज R2 माइनस R1 बाय 2 हो जाएगा, R2 माइनस R1। उसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज हमें डिराइव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32,
At what distance from convex lens of focal length 30 cm an object should be placed so that size of image is half of the object? तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमें अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो मैग्नीफाइड होगी, बट ये मैग्नीफाइड नहीं है, माना इमेज रियल बन रही है, तो आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हो, इट इज़ -1/2. Magnification is V by U, which is -1/2. So we can write V as -U/2. हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ गिवन है, हमें फाइंड करना है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. तो 1/f is 1/v minus 1/u. v का वैल्यू u/2, तो -2/u minus 1/u is 1/f. f हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर्स, तो ये हो जाएगा u is -3f, तो 30 into 3 is 90 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Thin prism with angle 4 degree made from glass, refractive index 1.54, combined with another thin prism P2 और refractive index 1.72. तो हमें बताना है एंगल टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. तो यहाँ पे डिस्पर्जन चाहिए बट डेविएशन नहीं चाहिए, तो नेट डेल जो है वो 0 होना चाहिए. जो प्रिज्म है वो ऐसे कुछ प्लेस्ड होंगे, एक प्रिज्म अगर क्लॉकवाइज डेविएशन लेकर के आ रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से जो नेट डेविएशन है वो 0 ही हो जाए. तो हमें यहाँ पे दोनों के डेल को इक्वेट कर देना है. डेल को आप ऐसा लिख सकते हो, डेविएशन को स्मॉल एंगल के लिए n-1 इंटू ए. तो फर्स्ट केस में a का वैल्यू इज 4 एंड n-1 1.4 minus 1 इट इज़ 0.54 इक्वल्स a2, और यहाँ पर n-1 हो जाएगा 1.72 minus 1, तो 0.72. इसको हम कैंसिल करेंगे, 18 3 टाइम्स, 18 4 टाइम्स, a का वैल्यू आ गया 3 डिग्री. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. Moment of inertia of solid cylinder about its axis is given. This cylinder rolls without slipping. The ratio of rotational kinetic energy to translational kinetic energy. तो आपको kr by kt फाइंड करना है, तो इट इज हाफ I omega square upon half m v square. I का वैल्यू हाफ mr square by 2 और ओमेगा इज v by r a whole square upon half m v square. तो ये r square सब कैंसिल हो जाएगा, एम वी से कैंसिल होगा. अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1:2. क्वेश्चन नंबर 35. फोर्स गिवन है एंड आर गिवन है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो जो नेट टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा. तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए. हम अगर आर क्रॉस एफ फाइंड करें तो इट इज आर इज 2 minus 6 minus 12 and f is a 3 6. तो यहाँ पर जे कैप के लिए लिख लेते हैं, तो दिस इज 6. जे कैप का कोफिशिएंट अगर मैं लिखूं तो ये है 6 माइनस प्लस 6a, ये 0 होना चाहिए, तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 36. अच्छा क्वेश्चन है, वापस से बूलियन का है. बूलियन हम पढ़ते नहीं है, बट इन्होंने पहले वाले टेस्ट में भी दिया था और अभी भी दिया है. तो हमें y बताना है बूलियन के टर्म्स में. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ए बी का नैंड जो होता है वो ए बी होल बार होता है, और नॉट गेट में जो भी अगर इनपुट है तो उसका बार हो जाएगा, और ये एक और गेट गिवन है तो उसमें ऐड होते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी. ओके, तो यहाँ पर a है ए बी का नैंड, तो दिस वुड बी ए बी होल बार. ये C का बार हो जाएगा, नॉट गेट है, और इन दोनों को ऐड करना है, तो ए बी होल बार प्लस C बार, ये हमारा y होगा. अब ए बी होल बार, इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे. ए बी होल बार इज a बार प्लस b बार और C बार एज इट इज, तो C ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 37. Part of transistor which is most heavily doped to produce large number of majority carriers. तो जो एमिटर होता है वो सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, कलेक्टर की उसके कम और बेस की सबसे कम. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Power radiated by black body is P naught, wavelength corresponding is lambda naught. On changing the temperature of the black body, power is 256 P naught by 81. तो हमें बताना है shift and wavelength कितना होगा. तो power is for black body it is sigma A T raised to the power 4. हमने पावर को 256/81 कर दिया, तो जो टेम्परेचर है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, वो पावर का 1/4 हो जाएगा. माना T डैश इज 256/81 रेज़ टू द पावर 1/4 इज T डैश. तो यहाँ 256 16 का स्क्वायर 4 की पावर 4, तो ये 4 हो जाएगा, और 81 3 की पावर 4, तो ये 3 हो जाएगा. तो टेम्परेचर को आपने 4/3 टाइम्स कर दिया. हमने एक वीन्स लॉ पढ़ा है, लैम्डा एम टी इज कांस्टेंट. तो टी अगर 4/3 टाइम्स हो गया तो जो लैम्डा है वो 3/4 टाइम्स हो जाएगा. लैम्डा डैश इज 3/4 टाइम्स लैम्डा नॉट. तो कितने से रिड्यूस हुआ, 1/4 से ये रिड्यूस हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. तो इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है. हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एंड दिस वैल्यू इज C, एप्सिलॉन नॉट C. एप्सिलॉन नॉट का हम डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट का के लिए अगर सॉल्व करें तो ये है Q स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर F. एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर विच इज एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर, तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर, एंड F इज ml T - 2. तो ये हमें याद रखना है, F का डायमेंशन फॉर्मूला इंटू C. C माना स्पीड, तो स्पीड इज L T - 1. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक L कैंसिल हो जाएगा, M ऊपर आएगा, M - 1 L - 2. T के लिए ये हो जाएगा 2 4 4 - 1 3, तो T3 A square. That means C option. Question number 40. Beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 mm wide, and resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. The distance between the first dark fringes, तो ये single slit की बात कर रही है, यहाँ पर मैक्सिमा होएगा, और यहाँ पर जो मिनिमाज होते हैं वो y इक्वल्स लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d पर होंगे दोनों तरफ. सिंगल स्लिट में केसेस रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ पे मिनिमा और फिर ये मैक्सिमा. तो हमें ये डिस्टेंस बताना है. माना दिस इज 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो लैम्डा है 600 नैनोमीटर, d की वैल्यू है 2 मीटर, एंड स्लिट विड्थ इज -3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2.4 mm आ जाएगा, माना डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन प्लीज. तो यहाँ वापस से डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है. दिस इज एट फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इफ स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड, तो हमें बताना है सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल ब्रॉड हो. तो एक तो बताना है लेंथ में कैसा चेंज आएगा, दूसरा बताना है इसका इंटेंसिटी कैसे चेंज होगा. तो ऑफकोर्स हमने स्लिट विड्थ को बढ़ाया है तो इंटेंसिटी मस्ट इंक्रीज. फिर हमसे पूछा है नैरो होगा या ब्रॉड होगा. तो अभी अभी हमने देखा ये जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा विड्थ आ रहा था वो 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d था, मतलब स्लिट विड्थ के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में था. तो यहाँ पे स्लिट विड्थ के क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में है तो d बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा, बिकम नैरो एंड ब्राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेव पल्स इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, म्यू गिवन है और हमें लोड गिवन है. कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.7 मीटर. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें पहले स्पीड निकालना होगा. स्पीड इज अंडर रूट ऑफ f बाय म्यू. f इज 80 इंटू 9.8, म्यू का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ -3. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴
8 को भी आप 2 इंटू 4 लिख सकते हो जाएगा 2 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 64। तो ये एक तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ 16 8 2 जा 16 अंडर रूट इज 4, 49 under root is 7 and 64 under root is 8 into 10 raised to the power 2. तो ये 3.5 into 10 raised to the power 2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ करी है क्या? 2 जा 16 and 64 8 का हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 into 10 raised to the power 2। हमें टाइम फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज 0.7 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10 raised to the power -2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/5.2, तो 2 इंटू 10 raised to the power -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It takes 2 seconds for a sound wave to travel between two fixed points. When the day temperature is 10 degree Celsius, temperature rises to 30 degree Celsius, तो कितना टाइम लगेगा? तो वापस से T is equals to D by V, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V से, और V जो है वो रूट T के इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा T बाई T इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा कैपिटल T बाई कैपिटल T विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हमने 20 से चेंज करा, और 10 डिग्री को अगर कैल्विन में लिखें तो इट इज़ 283 कैल्विन। हम अगर डेल्टा टी फाइंड करेंगे तो ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 283 कैल्विन। तो ये -0.07 के आसपास आएगा। अगर नया टाइम निकालें तो ये हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, माना 2 माइनस 0.07, तो 1.93। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये पिछले वाले टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, अभी दोबारा से इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, रिलेशनशिप बिटवीन एफ एक्स गिवन है, आपको बताना है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्स इक्वल्स 1 to 5। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये हमें बताना है। तो ये जो नेगेटिव वाले एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे। ये और ये तो हम देख सकते हैं सेम एरिया है तो कैंसिल हो जाएगा। आपको बस इस रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया इज 1 इंटू 10 और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 10, तो ये 15 जूल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, particle projected vertically upward with speed 16, after some time it again passes through the same point of projection, तब speed है 8। तो 16 से फेंका था 8 से आया है, माना there is some loss in energy क्योंकि air resistance की वजह से हुआ है। It is found that the work done by air resistance is same during upward and downward motion। तो हमें बताना है मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया। तो पहले तो हम निकालते हैं पूरा जर्नी में इसने कितना वर्क हुआ है एयर रेजिस्टेंस का। यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, तो ये दोनों में सेम ही वर्क हुआ है, और ये इक्वल होएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो पहले हमारा था 16, फिर हो गया 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो इट इज़ 64 माइनस 256 2 एंड 192 m/2 विथ नेगेटिव साइन, ये वर्क हुआ है। फिर अगर सिर्फ हम A to B का ही देखें तो A to B में डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज W1 विच इज़ WA/2। तो डेल्टा U इज़ mgh, बड़ी है एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? यहाँ पे 16 स्पीड था, यहाँ पे 0 हो गया, तो हाफ m 16 स्क्वायर इज इक्वल टू -192 m/2। तो हम यहाँ से m को कैंसिल कर दिए, GH की वैल्यू आ रही है 256 माइनस 192 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 624
15 माइनस 6, कुछ गड़बड़ किया क्या? यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है। ये 192/2 होगा। 192/2 का भी हाफ होगा, WA/2 लेना है, तो ये 192/4 हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से इसको लिखते हैं। तो GH का वैल्यू हो जाएगा 256/2 विच इज़ 128 माइनस 192/4, तो ये हो जाएगा 48। तो ये वैल्यू आ रही है 80, माना h इज़ 8 मीटर्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।